A very good day to each one of you and God's many blessings as we celebrate this gift of life. While celebrating this life, one of the things that pricks my conscience is when I ask my wife what is for lunch, what is for dinner. And I'm reminded of people who don't have one square meal a day in our own country, in various other parts of the world. And then I look at the words of Jesus Christ in St. Matthew chapter 25, perhaps verse 40 onwards. And where he says, I was hungry and you fed me. I was thirsty and you gave me a drink. I was naked and you clothed me. I was in prison and you visited me. I was sick and you took care of me. And it goes on. And then he says, whatever you did to the least of these my brethren, you did it unto me. So the whole essence of life, taking birth on this planet, living this life, being born whether as a rich person, poverty stricken, or somewhere in the middle. The question is, what response have I given? My social responsibility, my religious duties, and what is it that has prevented me from doing what the Almighty God really expects of me? And so I feel that I'm not here just by accident. I'm here sent as an ambassador of the one who created me with a mission, with a purpose. And unless I understand it, my going to church, my singing in the choir, or my prayers are all in vain, because I have failed to recognize the face of Jesus in those around me. Love God with heart, soul, mind, and strength, and love your neighbor as yourself. So the whole evaluation on the judgment day will be based on our performance, our response, our attitude towards the poor and needy. In which form Jesus appeared before us, and how did we respond? Did we refuse? Were we mere spectators, expressing our compassion but doing nothing? Or were we found to be those who really saw the face of Jesus and fulfilled their requirement? Not only is this a physical hunger, there's various kinds of hunger, thirst that I see. Mental, emotional, spiritual, financial, and maybe many other forms that I am not able to remember right now. But then, how do I, as a child of God, respond? That is exactly what is really going to ultimately decide whether I have done my duty or whether I whiled away my time on this earth before I return there. God bless us. Amen. एक चीज़ जो मेरे दिल को दहला देती है वो है जब मैं अपने घर में पूछता हूँ कि दोपहर के लिए, रात के लिए क्या खाना बना है, क्योंकि मुझे उस समय वो लोग याद आते हैं जिनको शायद दिन में एक वक्त की रोटी भी नसीब नहीं, और ये शायद हमारे देश में नहीं संसार भर में लोग हैं कि मेरा
मसीह को जानना, उसके शब्दों को पढ़ना, उस पर मास्टरी कर लेना, और जिसने बड़े स्पष्ट शब्दों में मत्ती की अंजील के 25वें अध्याय के शायद 40वें पद से अगर हम आगे पढ़ते हैं, कुछ एक ऐसी बातें करी हैं जो कि हमारे जीवन का निचोड़ हमको देंगी। मैं भूखा था, तुमने खाना खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने पानी पिलाया, मैं नंगा था, तुमने कपड़े पहनाए, मैं बीमार था, तुमने मुझे मेरी सुधि ली। और ये तो लिस्ट आगे तक है, जिसका जो निचोड़ है वो यही है कि प्रभु यीशु कहते हैं, जो कुछ तुमने मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों के साथ किया है वो मेरे साथ किया है। प्रश्न आज मेरे और आपके सामने ये है कि मेरे और आपका जो मसीही होना या मसीह को जान लेना या उस पर विश्वास कर लेना मुझे सीधे निजात नहीं दिलाएगा। कुछ मेरी सोशल या सामाजिक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि शायद मैं तो गिरजे में जाता हूँ और कलीसिया के साथ मेरे संबंध बड़े अच्छे हैं, मैं तो क्वायर में गाना भी गाता हूँ, मैं तो स्पेशल नंबर भी देता हूँ, वचन तो मुझे टिप्स पे याद है। लेकिन यदि मैंने प्रभु यीशु को चेहरे को अपने आस पास के लोगों में नहीं देखा, क्योंकि लोग तो नकाब पहने रहते हैं, बताते नहीं हैं, लेकिन एक परखने की आत्मा परमेश्वर देता है कि हमको याद समझ में आ जाता है कि इस मुस्कान के पीछे क्या गम छुपा है। और ये ज्ञान परमेश्वर की ओर से हमें मिलता है कि हमारा इस चमक धमक की दुनिया में स्वार्थी हो जाना, अपने ही बारे में सोचना, ये मसीहत कभी नहीं है। सच्ची मसीहत है मसीह के चेहरे को एक दूसरे के स्थिति के अंदर पहचानना कि क्या वो भूखा है, क्या वो नंगा है, क्या वो प्यासा है। और ये जो भूख और प्यास जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये केवल खाने पीने की नहीं है। ये प्यास है हमारी मानसिक है, आत्मिक है, आर्थिक है और शारीरिक तो है ही है। लेकिन शायद मेरी पूरी लिस्ट नहीं है, लेकिन बहुत सी ऐसी आवश्यकताएं लोगों की हैं। कुछ लोगों को ऐसे कान चाहिए हैं आज जो उनकी दिल की दर्द सुन ले। कोई ऐसा कंधा चाहिए जिसके ऊपर सर रख के रो लें, हल्के हो जाए। ये सब शायद आज हमने उसकी भूख प्यास को समझा नहीं है। लोगों ने एकांत में शायद पता नहीं क्या क्या एक्सट्रीम स्टेप्स ले लिए और हमने तो अफसोस कर लिया। कहीं जाकर कैंडल जलाए, वो हमारी रिस्पॉन्स है। लेकिन आज मैं चाहता हूं कि हम सब अवगत हो जाएं कि हमारी पूरी इस जिंदगी का जो सृष्टिकर्ता ने मुझे और आपको भेजा है, एक राजदूत बनाकर भेजा है, एक एजेंट बना के भेजा कि जाओ मेरा काम करो। और अगर ये मेरी समझ में नहीं आया और मैं सोचता हूँ कि केवल ये सरफेस लेवल पर रह करके मैं एक अच्छा मसीह बन गया, तो मेरी शायद गलतफहमी है। मुझे परमेश्वर से दिलो जान से प्रेम करना है और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना है। जो उस पर गुजर रही है मुझ पर क्यों नहीं गुजरती, मैं क्यों नहीं फील कर पाता हूँ। ये शायद अभी मेरे संपूर्ण परमेश्वर को जानने में कुछ अभाव तो है। मेरी परमेश्वर से प्रार्थना है कि हमारी आत्मिक आँखें खुलें, कि हम और ज़्यादा अवगत हों एक दूसरों की ज़रूरतों के प्रति। नकाब लोग उतारते हैं, अच्छी बात है, नहीं तो नकाब उतरवा के उनके असली चेहरे को देखे। मैं सोचता हूँ यहीं पर हमको मसीह नज़र आएगा और जो कुछ हम उन छोटे से छोटे भाइयों के साथ करेंगे वो तो मसीह का वादा है कि वो अल्टीमेटली उसी के साथ होगा। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आमीन।